अभी तक ग्लोबल चैलेंजेस मारी તમે તો આપડા મને નીકળવા નહોતા આવ્યા ને વચ્ચેમાં અત્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ આખા દુનિયાના પ્રોબ્લેમ્સ કયા પ્રોબ્લેમ્સ કયા દુનિયાના પ્રોબ્લેમ્સ કયા આપણને એ તો ખબર છે કે આપણા ઘરના પ્રોબ્લેમ શું છે આપણા ઘરના પ્રોબ્લેમ આપણને ખબર છે આપણા પોતાના સ્વયંના પ્રોબ્લેમ્સ ખબર છે પણ આખી દુનિયાના પ્રોબ્લેમ શું છે તો કેમ એના પર વિચાર કરવાનો તો આપણા શાસ્ત્રમાં કીધું છે કે વસુધૈવ કુટુંબકમ આખી જે વસુંધરા છે આપણું કુટુંબ આ દુનિયામાં પૃથ્વીમાં જેટલા લોકો રહે છે આપણા બધા કુટુંબી તો આપણી કુટુંબની વ્યવસ્થા અત્યારના શું છે આપણા કુટુંબની હાલત શું છે એ વિશે વિચાર કરો તો 700 કરોડ લોકો અત્યારે દુનિયામાં રહે છે 700 કરોડ તમારા ફેમિલીમાં 3 જણ રહે છે હવે તમારું ફેમિલી મોટું થઈ ગયું 700 કરોડ લોકો રહે છે એમાં ડોક્ટર લાલકા બી તમારા ફેમિલીમાં આવી ગયા નવીનભાઈ બી આવી ગયા હું બી આવી ગયો બધા આવી આ 700 કરોડ લોકો જે રહે છે એની સમસ્યા શું છે આપણે એ જોયું કે એમની મોટા મોટી સમસ્યા છે પાણી 700 કરોડમાંથી લગભગ 40% લોકો એટલે કે 200 કરોડ લોકો લગભગ 200 કરોડ લોકો એમને પીવાનું પાણી મળે એના માટે એમને 2 કલાક જવું પડે છે આપણે જે નળમાંથી પાણી કોઈને નથી આવતું એટલે આ 24 કલાકની અંદર 200 કરોડ આપણા ભાઈ બહેનો આપણા કુટુંબીજનો આ આટલી આધુનિક દુનિયામાં એમના જીવનનો અને એમના દિવસનો મોટાભાગનો સમય પાણી લઈ આવવામાં ત્યાં દૂર દૂર ચાલીને અને એમાં વાપસ મળે ન મળે ચોખ્ખું ન મળે એને ચોખ્ખું કરવાની બધી વ્યવસ્થા કરવી પડે 40% લોકો એ ઉપરાંત આપણે એ જોયું કે બેસિક ફેસિલિટી આપણે અત્યારના ટોયલેટ છે તો દુનિયામાં લગભગ 100 કરોડ માણસો એવા છે કે જેમની પાસે ટોયલેટની ફેસિલિટી નથી દર 6 માંથી 1 માણસની પાસે ટોયલેટની ઘરમાં ફેસિલિટી ઘરમાં એટલે છે જ નહીં ગામડાઓમાં બધા લોકો એકદમ બહાર જ જોવે બહુ મોટી સમસ્યા એટલે જે બેસિક ફેસિલિટી જે આપણને એક્સેપ્ટ કરી લીધી કે આપણને મળે જ છે પાણી ટોયલેટ સુવાનું ઘર આ વ્યવસ્થાઓ દુનિયાની 50-60% પબ્લિક પાસે નથી હમણાં હું એક મેગેઝિનમાં વાંચતો હતો ટાઈમમાં જ વાંચતો હતો કે અમેરિકાના 3 સ્ટાર જનરલ જેણે અફઘાનિસ્તાનમાં લડાઈ કરી એ પોતે રસ્તા પર સૂવે છે એટલી બેકારી વધી ગઈ છે એ રસ્તા પર સૂવે છે અને એનો મેં ફોટો જોયો કારણ કે અમેરિકામાં લાખો લોકો રસ્તા પર સૂવે ઘર નથી હોતું જાણીને આશ્ચર્ય થશે આ ઠંડીમાં ટૂંકમાં કેટલાય લોકો મરી ગયા હમણાં ઠંડુ તોફાન ચાલે અમેરિકામાં જે દેશ પાસે સર્વાધિક સંપત્તિ છે એ દેશના મિલિટરીના નાગરિકને બી રસ્તા પર સૂવું પડે મિલિટરીમાં જેને સેવા આપી છે એટલી બધી ત્યાં અમુક ડેટ્રોઇટ જેવા શહેરોમાં બેકારી વધી ગઈ છે કે લોકો પાસે ઘરનું મેન્ટેનન્સ ચૂકવવાના પૈસા નથી તો આખા શહેરના શહેર ખાલી થઈ ગયા લોકો ઘર મૂકીને વાય એનાથી અમારે પૈસા નહીં મ્યુનિસિપાલિટીનો ટેક્સ પાણી ચૂકવવાના પૈસા ભલે ઘર પડ્યું તમે ગૂગલમાં જઈને જેમ લખો ને એબન્ડન્ટ હાઉસીસ ડેટ્રોઇટ તમને આખા હજારો ઘર એવા જોવા મળશે રેડી ઘર ફર્નિચર સાથે મૂકીને વાય
આ એક બેસિક ફેસિલિટીનો પ્રશ્ન, પાણીનો પ્રશ્ન મોટો, બેસિક ફેસિલિટીનો પ્રશ્ન મોટો. ત્રીજો હમણાં આપણે છેલ્લા અમુક સમયથી જોઈએ છે યુદ્ધની સમસ્યા. આ દુનિયામાં લગભગ છેલ્લા 1500 વર્ષમાં 40 થી 50 કરોડ માણસ યુદ્ધમાં મરી ગયા. અને અત્યારના આજે આપણે અહીંયા શાંતિથી બેઠા છીએ, हमको कोई ऐसा डर नहीं है कि अभी इस पे बॉम्ब गिरेगा गुंडेचा इंडस्ट्रियल में और हम 12:30 को हम पहुंच ही नहीं पाएंगे. पर दुनिया में कितने सारे लोग इस भय में जीते हैं कि वो शायद शाम को जीना नहीं रहेंगे. अनएम्प्लॉयमेंट स्पेन में, मैड्रिड स्पेन में ऑलमोस्ट 30% लोग अनएम्प्लॉयड. और वहां तो क्या हो गया है, ऑक्यूपाई हाउसेज ऐसा मूवमेंट चल रहा है. आपके पास जगह है, आप रहते नहीं है, तो लोग आपके उसमें रहने लगते. खत्म, कोई कायदा वायदा कुछ नहीं. क्योंकि तुम्हारे पास घर एक ऑलरेडी है ना, दूसरा घर तुम्हारा तुम खाली नहीं रख सकते. लोग आके रहने लगते, तोड़ डालेंगे ताला, रहने लगेंगे. जाओ करना होगा, घर रहने को घर नहीं, क्या करेंगे. तो यूरोप में लो लेस देन कोई कायदा काम कुछ नहीं. स्पेन में स्पेशली ये हमारी दुनिया की हालत है. जो रियल प्रॉब्लम्स है, हमको तो लगता है कि सब हमारे जो प्रॉब्लम्स है ना, वो सब एकदम कोई इसको प्रॉब्लम बोलना ही नहीं चाहिए. आपको अगर घर में पानी आता है, आप टॉयलेट जा सकते हैं और आपको बॉम्ब का डर नहीं है, तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम नहीं. रियल प्रॉब्लम्स में करीबन आधी दुनिया जी रही है, जिसको बोलेंगे रियल प्रॉब्लम्स. जान का खतरा है, बेसिक फैसिलिटी नहीं है, कायदा कानून कुछ नहीं है. नाइजीरिया में जाएंगे, अफ्रीका में जाएंगे, कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं. जो दादागिरी करेगा उसको कानून चलता है. ये परिस्थिति हमारी दुनिया है. आज हम ये सोच रहे हैं कि ये दुनिया की इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, हम क्या कर सकते हैं उसमें. वो लास्ट टाइम आए थे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, उन्होंने बोला, लोग बोलते हैं कि जाने दो ना, दुनिया में प्रॉब्लम, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, दुनिया में इतने प्रॉब्लम है, हम क्या कर सकते हैं. इसके ऊपर हम आज की चर्चा करेंगे. और ये चर्चा करूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं और बहुत विज्ञान के आधार पे बात करेंगे. हम जो बात करने वाले हैं आज, उसका आधार बहुत वैज्ञानिक है. और मैं तो आपको एनकरेज करूंगा कि आप भी उसके पीछे के विज्ञान को समझें. क्योंकि एक तो बात है कि जैसे ये स्मार्टफोन है, उसको अब हम यूज कर लेते हैं. स्मार्टफोन है, उसको हम यूज करेंगे, ये एक हमारी एक्सपर्टाइज होगी. तो इसके पीछे के साइंस को अगर समझेंगे तो ताज्जुब हो जाएगा. ताज्जुब हो जाएगा. एक छोटा सा ऐसा चीज कि उसमें पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकते हो. कैसे होता है ये, कैसे संभव होगा, कैसे, क्या टेक्नोलॉजी होगी. क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अगर आप समझेंगे तो एक कमाल की चीज. आप यहाँ पे बैठ के लंदन फोन लगाओ, कैसे जाता है लंदन, कहाँ, आप यहाँ, आवाज इतनी छोटी सी चीज में रिकॉर्ड हो जाएगा, वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, बातें रिकॉर्ड हो जाएगी, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए मिल जाएगी. जब मैं इंजीनियरिंग स्टडीज कर रहा था, तो जब मैंने ये टेलीकम्युनिकेशन का सब्जेक्ट पढ़ा, तो दो तीन दिन तक ताज्जुब हो गया. अभी उस दिन तो मोबाइल थे नहीं, उस दिन तो हम तो खाली ये पढ़ रहे थे, सैटेलाइट टेलीफोन.
इतना तर्जुम हो गया कि पूछो मत। तो एक तो है कि हम इसको यूज करें, और दूसरा कि उसके पीछे का अगर हम विज्ञान समझेंगे तो आप इसको नमस्कार करेंगे, इसको सर पर लगा लेंगे कि आदमी की इंटेलिजेंस के चमत्कार, इसको प्रणाम करेंगे, साष्टांग प्रणाम करने जैसी चीज। अभी मैंने घर में एक बुक रखी है, ऐसे 500 साइंटिस्ट और इनोवेटर्स जिन्होंने हमारी दुनिया का इतिहास बदल दिया, ऐसे 500 लोग। मैं लड़की को दिखाता हूँ जिन्होंने साइकिल ढूंढी। एक अभी पेरिस के आदमी का मैं साइकिल जिन्होंने ढूंढी, पहले साइकिल नहीं थी, देखो हम साइकिल यूज करते हैं। कभी सोचे साइकिल कैसे ढूंढी लोगों ने, इनोवेट की, कितना स्ट्रगल किया है इस साइकिल बनाने में। जब साइंटिस्टों ने साइकिल ढूंढी, इन्वेंट की, तो डायरेक्ट साइकिल नहीं बन गई। पहले उन्होंने देखा घोड़ा गाड़ी चलता है, तो अभी घोड़ा गाड़ी चलता है तो वैसा हम वुडन के टायर थे, लकड़े के टायर, और पैर से लोग चलाते ऐसे बैठ के, और पहले बहुत लंबा आगे टायर थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने देखा कि ये रबर के टायर बन सकते हैं, हवा वाले टायर बन सकते हैं। तो एक तो हम कुछ चीज सुने, उसको यूज करें, वो हम बेसिक लेवल का कर रहे हैं, लेकिन कभी अगर उसके पीछे का विज्ञान समझेंगे तो बहुत बड़ा ताज्जुब हो जाएगा, एक एक्सपीरियंस ऑफ वंडर आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ, इसे छोटा सा विज्ञान कहूँ, फोन की बात निकली है तो एक भाई ये समझ लीजिए ऐसा विज्ञान, समझ लीजिए कि मुंबई में 5 करोड़ लोग, 5 करें 2.5 करोड़ लोग, महाराष्ट्र में 7.5 करोड़ लोग। अभी मुंबई के लोग, अभी कांदीवली पकड़ लो, 5 लाख लोग हैं, कांदीवली के लोग फोन पे बात कर रहे हैं। तो जब मैं फोन पे बात करूंगा, यहाँ पे हेलो बोलूंगा, तो मेरा हेलो, इसके अंदर एक माइक है, वो माइक में जाता है, माइक उसको पकड़ता है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो माइक के अंदर एक पर्दा होता है जो हिलता है, थोड़ा सा पर्दा होता है वो हिलता है, तो वो पर्दा हिलता है, वो हिसाब से वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो कन्वर्ट होता है, वो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में बन जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ऐसे चलते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल चलते हैं। फिर इसके अंदर का एक ट्रांसमीटर है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को यहाँ से छोड़ देगा हवा में। अब आप ताज्जुब की बात देखो, मेरे फोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल निकल रहा है, आपके सबके अंदर से सिग्नल निकल रहा है। अभी टावर है, वो सबके सिग्नल पकड़े, लेकिन मेरे सिग्नल को एनकोड किया है कि ये सिग्नल, ये आदमी का सिग्नल, और फिर ये सब सिग्नल मिक्स हो जाएंगे, टावर में सब सिग्नल मिक्स हो जाएंगे, तो ये एक साथ एक ही स्पेक्ट्रम में चले जाएंगे सब सिग्नल, और फिर सब सिग्नल जाएंगे। मेरा सिग्नल है लंदन लगा तो लंदन जाएगा, तो लंदन में भी बहुत सारे सिग्नल आ गए, अभी वो उसको डिकोड करेगा वो, और जो उनका मेरा जिस माप पे मैंने फोन लगाया उसके टावर पे जाएगा, उसके टावर से उसके मोबाइल पे जाएगा। समझ? अभी हमने कल ही नहीं, लेकिन हर ट्यूसडे को मैं करता हूँ, लेकिन कल दूसरा हमने काम किया कि अभी ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये जो हमारा सेशन हो रहा है, फिर रिकॉर्ड करके उसको YouTube पे लगाते हैं। अभी हमने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है, अभी जो बोलेंगे ना वो लाइव YouTube पे चला जाए, डायरेक्ट। इधर हम बोलेंगे ना, वो तुरंत दुनिया में लाखों लोग जिनको देखना है देख सकते हैं,
100 करोड़ लोग हैं दुनिया में, जिनको इंटरेस्ट हो जाएगा देख सकते हैं लाइव। हम उनको बोलेंगे आप क्वेश्चन पूछो तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे अगर ये स्क्रीन में दिखेगा तो चलो भाई आपके गुणवंत भाई और दोस्त एक मिला सदगुण भाई देख रहे हैं। सदगुण भाई बोलो पूछो, सदगुण भाई पूछ सकते लाइव। तो टेक्नोलॉजी समझेंगे, एक तो हम यूज करते हैं, दूसरा उसको समझेंगे ताजुब हो जाएगा। तो वैसे एक हम टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं, रिसर्च के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या सॉल्यूशन हम ला सकते हैं। सब चैलेंजेस हमने सुनी, हमने उसको विचार किया, कोई सॉल्यूशन क्या ला सकते हैं, तो उसके ऊपर हम बात करें। उसके पहले मैं एक बात कहूं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जहाँ पे स्टडी किया, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, उसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो नहीं है, जहाँ पे वो प्रोफेसर थे। तो न्यू जर्सी में एक यूनिवर्सिटी है, पीटरसन यूनिवर्सिटी, और वो यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की है, साइंटिफिक स्टडी, उसका नाम है पियर्स, उसका शॉर्ट फॉर्म है पियर्स, 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 इसका मैं फुल फॉर्म भूल गया। तो स्टडी की, क्या स्टडी है जो आप कभी साइंटिफिक लिटरेचर, तो आप क्या डॉक्टर भाई का आपके जब देखा साइंटिफिक लिटरेचर तो कोई साइंटिफिक जर्नल आती है, साइंटिफिक लोग जो जर्नल आती है ना, तो डॉक्टर रानी को आती है बहुत ऐसे ही जर्नल में मैं बोलूँगा मेरा नाम डाल दो, ऐसे डालते नहीं, बहुत थोरो रिसर्च करके वो लोग कहते। अब ख्याल में आया, साइंटिस्ट लोगों की अलग जर्नल, हमारे जैसे मैगजीन चित्रलेखा वैसे नहीं पढ़ते वो। तो अभी समझ लीजिए साइंस की जर्नल है, तो साइंस की जर्नल में पीयर रिव्यूड जर्नल होती है। पीयर रिव्यूड मतलब कि अभी समझ लीजिए ये रेडियोलॉजिस्ट है, तो रेडियोलॉजिस्ट की जर्नल आएगी, उसमें जो टॉप रेडियोलॉजिस्ट है वो अप्रूव करेंगे, वही बात है, दूसरी बात नहीं आ सकती। तो वेरी 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 टफ थिंग टू गेट इनटू द जर्नल। हमारे कजिन हैं जो वो कोशिश कर रहे हैं उनका नाम रिसर्च करके डालने को, बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं। तो एक पीयर रिव्यूड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मतलब क्या पीयर रिव्यूड मतलब क्या होता है, अभी समझ लीजिए मैंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी पे बात की, या मैंने क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बात की, मैं करूँ, आप बोलेंगे ठीक है मैं बोल रहे हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन जो फिजिसिस्ट होते हैं, पार्टिकल फिजिक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो बात सुनेंगे, फिर उसमें जो बोलेंगे नहीं ये सही है ये गलत है, क्योंकि वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स लोग, वो सब्जेक्ट में वो लोग एक्सपर्ट, फिर वो लोग अप्रूव करेंगे, तो उसको बोलते हैं पीयर रिव्यूड, बोलते हैं पीयर रिव्यूड जर्नल्स। थोड़ा सा साइंटिफिक आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं, चलेगा ना, इसलिए पूछा कि मुझे कुछ समझ नहीं समझने जैसी बात है। आप देखो कि पीयर मतलब समझे, पीयर मतलब जो हम लोग एक लेवल पे होते हैं तो बोलते पीयर, जैसे आपके कजिन्स, फिर आपके सोसाइटी के नेबर्स, फिर या आप अगर एक साइंटिफिक डिसिप्लिन में है, मेडिकल में है, तो आपके सब कांदी के डॉक्टर, रेडियोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, पीयर लोग क्या करना चाहते हैं हमेशा, अगर आप एक पीयर ग्रुप में, एक ग्रुप में पीयर ग्रुप है आपका, सब सीनियर सिटीजन या आपके सोनी लोग, आपका पीयर ग्रुप है, और आप बोलो कि मैं एक नया ऐसा करना चाहता हूं, तो पीयर लोग क्या करेंगे आपको, हंसेंगे, हंसेंगे, चल गब्बस, पागल हो गया, सपोर्ट करेगा, अरे
भजन कर रहे हैं नहीं चले। पीयर ग्रुप इज ऑलवेज, दे विल नॉट बी वेरी एनकरेजिंग। चलो चलो बहुत अच्छी बात है, ऐसे नहीं बोला। टफ, दे आर नॉट लाइक जस्ट सपोर्टिंग यू, ठीक ऐसे नहीं बोलेंगे। तो बोलेंगे नहीं हम लोग थरो करते हैं बाबा, इसकी वजह से पीयर ग्रुप होते हैं, क्योंकि उसको उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको अच्छा दिखाने में कि आप खुश हो जाओ, ऐसे नहीं करते। पीयर ग्रुप तो बहुत टफ, हाँ प्रैक्टिकल भी रहता है, प्रैक्टिकल एंड टफ। तो पीयर रिव्यू जर्नल होती है। तो अभी आप समझो एक लेटर लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया को, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर पढ़ेगा, वो उसको अच्छा लगा तो डालेगा। लेकिन आप जर्नल में लिखना चाहते हैं तो वो उनका जो एडिटोरियल बोर्ड होता है ना, वो आपके ही कलीग्स है। वो बोले अरे ये किसने लिखा है, तेज ने लिखा है, चलो तेज है, अभी कल का छोकरा ये लिख रहा है, तो वो ज्यादा स्क्रूटनी करेगा। फिर उसको लगा कि एकदम 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 ठीक है, फिर उसको लेगा। ठीक है, तो एक साइंटिफिक रिसर्च की हम लोग बात कर रहे हैं। वो साइंटिफिक रिसर्च क्या है? वो साइंटिफिक रिसर्च ये है, अब देखो ये बात ऐसे आपको लगे कि ठीक है ऐसी बात है, समझते हैं ऐसी बात है, इसमें ज्यादा कोई अंधश्रद्धा मत बना देना। साइंटिफिक बात, ये बात ऐसी है कि उन्होंने क्या रिसर्च क्या किया। रिसर्च ये किया कि समझ लीजिए मैं ऐसे एक कॉइन थ्रो करता हूँ, फ्लिप करता हूँ, तो क्या आ सकता है? हेड या टेल। हेड आने का चांसेस कितना है? 50। टेल आने का 50-50 चांसेस। और मतलब कोई वो नहीं है ना, सिंपल है। हेड टेल कर दो 50% नहीं, 50% नहीं। अभी उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, अभी डॉक्टर रानी के सामने मैं हेड टेल्स कर रहा हूँ और डॉक्टर रानी ऐसे सोचेगी ना हेड जाएगा हेड जाएगा, तो स्टैटिस्टिकल चांसेस बढ़ जाते। हजार एक्सपेरिमेंट किए। आप तो सोच रहे हैं अंदर, मैं तो इधर उछाल रहा हूं, कोई कनेक्शन थोड़ी। वो तो छोड़ो, वो तो एक लो वो एक्सपेरिमेंट हो गया। अब देखो रैंडम कुछ होता है, रैंडम मतलब है वो प्राइस निकलता है। समझ लीजिए आप लोग सबका मैंने चिट्ठी पे नाम लिखा, अल्पा, डॉक्टर लालका, रेखा बेन ना, उषा बेन, सॉरी उषा बेन, नवीन भाई, सबका नाम लिखा और उसको मिक्स किया। फिर मैंने मिसेस रानी को बोला, मिसेस रानी इसमें देख लीजिए, एक उठाई, एकदम रैंडम है, मिक्स कर दिया, रैंडम है। रैंडम मतलब कि किसका भी आ सकता है। परंतु अगर तेज ने सोचा मेरा ही नंबर निकालना चाहिए, उसका इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है, क्लियर है, मेरा ही नंबर निकलना चाहिए, तो उसके नंबर निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये साइंटिफिक प्रूफ है, मतलब साइंटिफिक प्रूफ है। इसको क्या बोलते हैं, मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में एनामोलीज बिकॉज ऑफ इंटेंशन, ऐसा बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में, ऐसा बोलते हैं। हम साइंटिफिक लोग ऐसे नहीं बोलते कि आप ऐसे सोचने लगो मुझे मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, तो मर्सिडीज आगे खड़ी रह जाएगी, ऐसे नहीं बोल रहे। रिसर्च ये है कि आप जो रैंडम नंबर्स होते हैं, जो बाय लक इवेंट्स है, प्रोबेबिलिटी इवेंट है, वो बार बार ऐसा देखा गया कि एक आदमी अगर इंटेंशन करता है तो वो जो टोटली रैंडम चीज है उसका आउटकम बदल जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। इसलिए ये लोग ये जो सीक्रेट मूवी वगैरह है ना, उन्होंने उसको वही चीज को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। सो ये पीटरसन यूनिवर्सिटी लॉ ऑफ एक्सटेंशन नहीं बोलती, अट्रैक्शन नहीं बोलती, वो तो बोलते कि तो समझ में नहीं आ रहा, कैसे हो रहा समझ में नहीं आ रहा। पर ये एनामोली होते हैं, एनामोली मतलब फर्क पड़ता है, कुछ फर्क पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्यों पड़ रहा है, पर कुछ फर्क पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा।
पड़ता है। फिर उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, इसको बोलते रिमोट व्यूइंग। ये गौतम भाई ये सब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। इधर आपको लगेगा कि अंधश्रद्धा, निर्मूलन के बदले अंधश्रद्धा को क्रिएट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं रिमोट व्यू। रिमोट व्यू तो क्या, जो जो डेटा है साइंटिफिक रिजल्ट से, उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। नहीं। तो जो दिखा है हो रहा है, लेबोरेटरी में दिखा है, रिमोट व्यू नहीं करते हैं कि समझ लीजिए नवीन भाई को इधर बिठा दिया कि नवीन भाई आप इधर बैठो। और अभी उनको बोला, मतलब नवीन भाई को नहीं, लेकिन जो लोग के पास ऐसे कुछ स्पेशल एबिलिटी है, किसी के पास स्पेशल एबिलिटी है, जैसे ड्राइविंग, कितने लोगों को ड्राइविंग नहीं आता है? ड्राइविंग नहीं आता है, ड्राइविंग नहीं आता है। अभी मैंने ड्राइविंग किया ना, अभी आप आए हैं मेरी गाड़ी में, ड्राइविंग करने की एबिलिटी है मेरे पास, मैंने डेवलप की, पहले नहीं थी, फिर मैंने डेवलप की, मेरे पास एबिलिटी है कि मेरे पास ड्राइविंग की एबिलिटी है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास एक एबिलिटी है, तो उनको बिठा देने की आप बैठो, फिर अभी उनको बोलेंगे अच्छा दिखाओ रघुलीला में क्या हो, जो बैठे हैं, टोटल कंट्रोल है साइंटिस्ट का उनके ऊपर, बोले रघुलीला में बोलो क्या हो, फिर बोले रघुलीला में ये ऐसा हो रहा है, ये आदमी ऐसा बैठा है, वैसा बैठा है, फिर उसको नोट करते इन्होंने ये बोला, और एक आदमी उनका रघुलीला में खड़ा होता है, साइंटिस्ट होता है, वो बोलेगा अच्छा ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये नोट कर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है नोट किया, फिर दोनों मैच करते हैं। काफी उसमें 100% राइट नहीं होते, सिमिलरिटी काफी वो होते हैं। इसके क्या बोलते हैं, साइंटिफिक थोड़ा वर्ड समझ देता है, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट का मतलब क्या, कि समझ लीजिए मैं कहूं कि रघुलीला में हॉल है, इंपीरियल हॉल, उसमें क्या है अभी, तब बोलेंगे उसमें चेयर है, हॉल है तो चेयर है, तो वो सिग्निफिकेंट बात नहीं है ना, वो कोई सिग्निफिकेंट बात नहीं होती है, कॉमन सेंस। ऐसी कुछ बातें जो कॉमन सेंस से आपको मालूम नहीं पड़ सकती। एग्जांपल्स, अभी समझ लीजिए कोई बोलेगा, अभी आप अपनी वाइफ को पूछो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फोन करके पूछो, बोलो हिंदी में बात करो, तो सिग्निफिकेंट बात नहीं है ना, वो तो उनको मालूम है कौन सा कलर का शर्ट पहने, वो बोलो चलो थोड़ा सा सिग्निफिकेंट, तो चलो यहाँ पे 4 बार आई, उनको मालूम है ब्लू शर्ट पहनता हूँ, तो वो भी सिग्निफिकेंट बात नहीं है। अभी कौन सा कलर का पेन हाथ में लिया, अभी हाथ नोट्स लाए कि नहीं लाए, और अभी कौन सी यूनिवर्सिटी का बात नाम लिया, अभी बोलो, अभी जेब में हाथ है कि नहीं, हाँ अभी ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, कौन सा हाथ जेब में है, हाँ कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम लिया, अभी क्या समझाया, अभी वो बोल दे, उसको बोले स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। तो क्या किया इन्होंने, ये कहा कि कुछ, उन्होंने ये कहा कि हमारे मन के इंटेंशन कुछ अज्ञात तरीकों से दुनिया पे असर कर, ऐसा कहा हमने। नहीं मैं उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे या कोई भी लॉ देंगे, इन्होंने नहीं नाम दिया, उन्होंने ये कहा कि हम जो इंटेंशन रखते हैं हमारे मन में, वो इवन मशीन्स के ऊपर, जो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, वो रैंडम नंबर जनरेट, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट था वो मशीन के ऊपर, कि एक सॉफ्टवेयर होता है उसमें रैंडम नंबर जनरेट होते हैं, 503 फिर 604 फिर 502 फिर 102 फिर 15 फिर 18 ऐसे नंबर जनरेट होते हैं। अभी तो मशीन पे जनरेट हो रहे हैं, अभी उसके सामने बैठ के ऑपरेटर जो रहता है ना, वो समझेगा अभी 102 आना चाहिए, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। मशीन रिस्पॉन्स, ये सिर्फ बारगांव में भी है या इंडिया में भी? अरे आदमी तो आप ही है ना, हाँ नहीं, हाँ आदमी का है,
ये एक्सपेरिमेंट बारगांव ही हुए थे, न्यू जर्सी में हुए। इधर इंडिया में नहीं हुआ है ऐसा इसमें। इंडिया में नहीं हुआ, लेकिन रिजल्ट्स आदमी लोग ऐसे नहीं यहाँ भी है, ऐसे आदमी लोग यहाँ भी है। और मैं एक आदमी को जानता हूँ हाँ जो इस तरह से बोल के बता देता है। यहाँ से फोन करेगा वो अमेरिका में, हाँ वो अमेरिका का जो आदमी फोन उठाएगा उसको बोलेगा आपने नीले रंग का शर्ट पहना है, आपने ये रंग की लुंगी पहनी है, ये लुंगी पे ऐसा ऐसा चेक्स है, आप अभी हाथ खुजा रहे हैं, अभी सर खुजा रहे हैं, अभी आपका हाथ कमर पे रखा। वो यहाँ से बोलेगा और वो बोलेगा आपको कैसे दिखता है। वो बहुत प्रयोग हमने किए हैं दुनिया में अलग अलग जगह पर। आदमी होते हैं और वो यहाँ हमारे साथ होता है और वो बोलता है वो वहाँ सच होता है। वो उसको जानता नहीं है, वो एक दूसरों को जानते हैं लेकिन ये सच होते हैं। तो अभी साइंटिस्ट को ये मालूम नहीं ये कैसे हो रहा है। साइंस में ये भी है ना, हाउ कैसे होता है, हाउ मालूम नहीं, हो रहा है। बहुत साल तक देखो बिजली चमकती थी तो लोगों को मालूम है कैसे होता है। तो हमारे में पैसे बोलते हैं, हमारे कृष्ण भगवान के मानने वाले भगवान खेल रहे, गिल्ली डंडा खेल रहे, आवाज है ऐसा। हम लोग हमारा ऐसे थियरी, भगवान खेल रहे हैं, भगवान की लीला है, खेलने का मूड आ गया तो आवाज आ रहा है। अभी साइंटिस्ट लोगों को मालूम है ना कैसे होता है, कौन सा केमिकल हवा में क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऐसा ऐसा होता है, फिर ऐसे उसके लिए आवाज। तो पहले तो इवेंट्स मालूम पड़ती है, कैसे हो रहा है वो नहीं मालूम है। वैसे अभी ये इतनी मालूम पड़ गई हमको कि हमारे इंटेंशन से दुनिया में जो बातें हैं उस पर असर हो रहा है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, आप मुझे बताइए। अगर दुनिया के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करना चाहते हैं और हमारे इंटेंशन से दुनिया पे इतना असर हो रहा है तो क्या करना चाहिए? अच्छे इंटेंशन डालने चाहिए अच्छे दुनिया के ऊपर। दुनिया पे अच्छे इंटेंशन डालो। और दूसरा अच्छे काम करो। हाँ, और पहले खुद में इंटेंशन वैसे क्रिएट करो। एक तो खुद में इंटेंशन क्रिएट करो, एकदम सिंपल बात है। अच्छे इंटेंशन क्रिएट करो और जिनके अच्छे इंटेंशन है या तो जो इंटेंशन अच्छा करना चाहता है उसको एनकरेज करो, उनसे रिश्ता जोड़ो, उनको एनकरेज करो। हाँ, उनको एम्पावर, બીજાના માટે સોચ भी सारी रखो, सोच सारी रखो। उससे अपना खुद का भी अच्छा होता है, ऐसा करते हैं ना। અને એનો આનંદ भी મળે। और दूसरे अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं या उस पे आपने देखा कि कुछ अच्छे इंटेंशन है तो उसको एम्पावर करो। देखो आपके हाथ में है तो अच्छा कुछ कर रहा है ना, तो किसी ने कोई अच्छी बात बोली आपके ऑफिस में या आपके घर में, आप बोलेगा तू बोल रहा है, अभी तक तो ऐसा था, अभी तू बोलने लगा, चल देखता हूँ। लोग ऐसे ही करते ना। जनरली किसी ने देखो આપણે બીજા માટે સમજો કે આપણે સારું એને કોઈ કહેતા હોઈએ, સમજાવતા હોઈએ, પણ એને સમજમાં જ ન આવે આપણી વાત બધામાં ખોટી ને ખરાબ જ હોય તો એનું શું કરવાનું? नहीं, हम लोग अभी ये सोचते આવું हैं, બી થાય। हम लोग हमें છે ને એ ડોક્ટર આને શું કીધું, એક પહેલા આપણે ટેન્શન ક્રિએટ बहुत सिंपल बात है। अभी जो आप सोचते हैं ना तो आप सोच नहीं रहे, ऑटोमेटिक सोच आ रही है। आपको सोच क्रिएट करनी, बहुत फर्क है। एक पेंटर होता है ना, वो ऐसे ऐसे घिसने नहीं लगता है, उसको क्रिएट करता है। वैसे हम तो क्या है हमारे माइंड में घिसते हैं, जो भी आगे घिस रहे हैं। आप हमारे जो 99% सोचे सब कचरा है, तो हम कुछ क्रिएट ही नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक विचार आ रहे और जा रहे, ऑटोमेटिक विचार आ रहे जा रहे।
तो पहला तो आपको ये समझना पड़ेगा, हमको ये समझना पड़ेगा कि हम क्रिएट कर सकते। सोच ऑटोमेटिक आ रही जा रही, उसको कोई झगड़ा मत करो, उसको जाने दो, उसको आप उस पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, कंट्रोल लेने की कोशिश भी मत करो। अभी हम दूसरी बात बोल रहे हैं, अभी हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास क्रिएट करने का कंट्रोल है, क्रिएट करने का कंट्रोल आपके पास है। तो हम एक इंटेंशन क्रिएट करेंगे, पहले इंटेंशन क्रिएट करें, कोई नहीं बात बीजा ने बात हमारा भूल जाओ, हमको एक इंटेंशन क्रिएट करना है। जैसे एक पेंटर पेंटिंग बनाता है ना, वैसे वो इंटेंशन क्रिएट कर। जैसे हमने साकार मेडिटेशन में एक ऐसा इंटेंशन हमने क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया कि वी विल क्रिएट वर्ल्ड पीस। हमारा इंटेंशन क्या है? टू क्रिएट वर्ल्ड पीस। अभी आपने ये इंटेंशन क्रिएट किया कि ओके आई वांट टू क्रिएट वर्ल्ड पीस। ऐसा आप सोच सकते हैं ना कि मैं पूरी दुनिया में शांति करना चाहता हूं। सोच सकते हैं सब लोग? सोच ही सकते हैं। सोच तो आपने सोच लिया, ईमानदारी से सोचा कि बेईमानी से? ईमानदारी से। ओके, तो हमने ये सोचा कि डॉक्टर रानी क्रिएट एंड वी विल क्रिएट वर्ल्ड पीस। कैसे होगी वर्ल्ड पीस? बाय एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स, लोगों को एंड ऑर्गेनाइजेशंस कमिटेड फॉर पीस, लव एंड जॉय। तो जो लोग शांति के लिए, जो संस्थाएं शांति के लिए, प्यार के लिए, आनंद के लिए कोशिश कर रही हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं, उनका एम्पावर करें, वो खुद को भी एम्पावर करें। चॉइस आपके हाथ में, चॉइस हर एक मोमेंट में आपके, मैं लास्ट तक क्या कहूँ, हर एक मोमेंट में चॉइस। शांति को एम्पावर करो या शांति का डिसएम्पावर। शांति को एम्पावर करते गए शांति बढ़ती जाएगी। तो ये ऐसे करेंगे। हाउ? तो पहला इंटेंशन हमने क्या क्रिएट किया? टू क्रिएट वर्ल्ड पीस। अभी ये इंटेंशन अगर आपने ऑथेंटिकली ईमानदारी, तो आपको ये पूरा दिन, पूरा वीक, पूरा महीना, पूरा जीवन के साथ रहेगा कि मेरा कमिटमेंट है वर्ल्ड पीस। मुझे शांति क्रिएट करनी, और ये आपने क्रिएट किया, उसके साथ ही पूरी दुनिया पे असर हो रहा है। आई वांट टू क्रिएट अ वर्ल्ड पीस, उस पूरी दुनिया पे असर हो रहा है। तो अभी आप समझ लीजिए, आप इसके लिए ईमानदारी से, मैं बोल रहा हूं उसके लिए नहीं, ईमानदारी से खड़े हैं, ईमानदारी से खड़े हैं डॉक्टर लालका, तो आप पे भरोसा कर सकते हैं कि आप ईमानदारी से ये बात कह रहे हैं? आप पे कर सकते हैं गौतम भाई, और ऑनेस्टली यू आर कमिटेड टू दिस, क्रिएटिंग दिस। अभी समझ लीजिए, आपने ईमानदारी से कहा you are committed to world peace by empowering। कैसे करेंगे? जो लोग और संस्था है जो शांति के लिए काम करे, उनका पावर। ये आपने इंटेंशन क्रिएट। वैसे ही आपके घर में आपने क्रिएट किया, मेरे घर में शांति और प्रेम हो जाएंगे। और अभी एक ऐसा मौका आया कि आपको लगता है गुस्सा करना पड़ेगा, अभी क्या करेंगे? गुस्सा तो होएगा ही। गुस्सा कैसे कर सकते हैं? और ऐसा क्या फल हो गया ना? और ऐसे नेचर हो भी गया ना, तो इमीडिएटली डिपेंड होके सामने वाले को ये भी हो गया कि ऐसा कुछ इंसिडेंस इतना है कि एज अ
पुराने हिसाब से हाँ। तुम्हारा गुस्सा निकल गया। हाँ Immediately I felt bad। अरे मैंने ऐसा इंटेंशन लिया फिर भी मेरे से हुआ। Immediately मैंने सामने वाले से बात की कि मैंने बोला ऐसा मुझे लगा, बट जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, सॉरी बोल सकते, नहीं तो हम पहले सॉरी नहीं बोलते क्योंकि तो- इंटेंशन क्लियर। वेरी नाइस। तो मुझे ये सुनना है कि आपने ये वीक में, अभी से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपने पीस के लिए आपके पास चॉइस थी, पीस या अशांति क्रिएट, तो आपने क्या चूज किया, आपकी कौन सी विजय थी? पीस के लिए आपने कोशिश किया, तो विक्ट्री हो गई आपकी। तो उसके बारे में मैं सुनना चाहूंगा कि आप जैसे बोल रहे हैं डॉक्टर क्या, जैसे मैं एक स्पेसिफिक बोलूं, हमारे एक स्टाफ मेंबर थे, उनकी एक हैबिट है, मैं उनको कुछ काम दूंगा ना, वो खुद कर रहे हैं, मुझे दूसरे को दे। मैंने उनको कहा मैं आपको काम दूंगा तो आप ही करिए, आप दूसरे को मत बोलो, तो दूसरे को ना मैं दे दूंगा ना, और वो दूसरा आदमी काम कर रहा है, उसको आप क्यों डिस्टर्ब करते हैं? बोला नहीं नहीं नितिन भाई अभी नहीं, अभी जान लो, अभी 2 दिन पहले मैंने उनको काम दिया कि ये काम है, बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करने का था, मतलब 15-20 मिनट के बाद मैंने देखा तो उधर ही बैठे, बोला आपको बोला पैसा डिपॉजिट कर दीजिए, बोला नहीं नहीं मैंने उसको भेज दिया। बोला आपको मैंने बोला, उसको मैंने दूसरा काम दिया था, बोला नहीं नहीं मैं बिजी था तो मैंने उसको भेज दिया। मेरे को इतना गुस्सा आया, कैसे काम कर सकते हैं? अगर एक आदमी को काम दो, वो 50 लोग काम करते हैं ऑफिस में, सब लोग एक दूसरे को काम देने लगेंगे, कर सकते हैं? आप मुझे बताइए, कर सकते हैं आप लोग ऐसे काम कर सकते हैं? यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, राइट, एक्सपोर्ट कंपनी में बॉस काम देगा आपको, आप दूसरे को बोल सकते हैं विदाउट टेकिंग बॉस की परमिशन? हाँ पर आप करो ही नहीं, जैसे आपको काम दिया आप दूसरे को दे दो। और खुद को बिजी बताना, तो खुद को बिजी बताना, ना मुझे गुस्सा आया, मैंने उनको एक्सटेंशन पे फोन किया, अंधड़ा तुम मुझे जानना मैं आप देखते हैं, अभी उसको चिल्लम चिल्ली होगा, वो आए मेरे दरवाजे पे गए, मैं अभी वापस जाऊँ बैठो, मैं क्या इतना, मैं तुम आधे घंटे के बाद बुला, फिर आधे घंटे के बाद मैं ये बात पे अगर मैंने कुछ किया तो पीस क्रिएट नहीं होगी, अशांति क्रिएट होगी। 2 घंटे के बाद बुलाया, देखो भाई आप ऐसे काम करेंगे, आप मुझे बताइए कैसे चलेगा? मैंने नहीं सॉरी सॉरी भाई अभी तो जान, मैंने वो दूसरे आदमी को बोल दिया अभी तुम बात मत सुनना। नहीं लेकिन नितिन भाई उससे आपके ऊपर, आपके मन के ऊपर तो एक बुरा असर आएगा ही, जो अशांति पैदा हुई आपके मन में हुई, उसको आपने आपके अंदर ही ले लिया, मिटा दिया, मिटा दिया या रख दिया। आपने कैसा ले लिया उसको? क्योंकि उनका इंटेंशन क्लियर है ना। मैंने ये देखा कि अभी मेरा इंटेंशन क्या है, उसको मेरे को गुस्सा करने का ये इंटेंशन है कि ये आदमी दूसरे को काम नहीं देना चाहिए, ये मेरा इंटेंशन। तो जो दूसरे आदमी को बार बार काम देता उसको मैंने बोल दिया देख अभी तूने उसका काम सुना ना तो मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूं, तेरे को अगर काम देगा ना तो तुम बोलेगा तुम इतने पैसे परमिशन लेगा। अभी उनको भी धक्का लग गया, अरे अभी मैंने तुम कितनी बार बोला, अभी मैंने उसको ना बोल दिया तुम्हारा काम नहीं करेगा, अभी तुमको उसको काम बोलना है तो मेरे को पूछो, हो गया ना? अभी तो सॉल्व हो गया, अभी तो परमानेंटली सॉल्यूशन हो गया, अभी हो ही नहीं सकता ये काम। शायद वो ऐसे बोल रहे हैं कि वो टाइम पे गुस्सा आया, वो गुस्सा को तो आपने फील किया और क्या किया? क्या फिर मैंने, अरे मैंने ये देखा कि अगर मैं गुस्सा भी करूंगा फर्क तो निकलेगा ही नहीं ना, वो तो वापस करेंगे। 4 बार तो पहले इतनी बार उसको वार्न किया है। नहीं आपके ऊपर तो उसका असर रहा ही होगा ना, गुस्सा जो आया है हाँ उसको आपने कहीं निकाला तो है ही नहीं, जो गुस्सा
आपने आपके अंदर आया, उसने जो किया, एक्शन किया, उससे आपके अंदर जो गुस्सा आया, आपको एक ये हुआ, तो वो आपने बाहर नहीं निकाला, आपके अंदर ही रह गया है ना। नहीं, उन्होंने इंटरकॉम करके उसको बाहर तो निकाल के बोला ना। ऐसे नहीं, देखो ये गुस्सा मतलब ऐसा नहीं है कि आपके घर में पानी आता है तो पानी निकाले तो उधर पाइप में रह गए, ऐसा गुस्सा नहीं है। ये हमारी समझ है, गुस्सा हम मतलब निकालेंगे तो हमारे को आशा होती है, नहीं। यही समझ है। फिजियोलॉजिकली ऐसा कुछ भी नहीं। फिजियोलॉजिकली मतलब क्या है कि अपना ब्रेन का थोड़ा सा केमिकल इम्बैलेंस हो गया। हाँ। अभी आपने बहुत ज्यादा एक्सप्रेस किया तो और इम्बैलेंस हो जाएगा। हाँ। अरे मैं ठीक है जाने दो। अच्छा, तो निकल गया। ठीक। आपको ये मालूम है गौतम भाई, जो लोग स्ट्रेस के ऊपर काम करते हैं, डिप्रेशन के ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर साइकियाट्रिस्ट होते हैं, स्ट्रेस से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, बहुत डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस आता है, क्या बोलते हैं साइकियाट्रिस्ट मालूम है? कैसे डील करेंगे उनके साथ? आपको कुछ चीज में डिप्रेशन आ रहा है, कोई आदमी से आपका झगड़ा हो रहा है ना, उसके विचार बार बार आते हैं और फिर आप डिप्रेशन हो रहे हैं, तो क्या करने का? उसका सॉल्यूशन मालूम है? उसका सॉल्यूशन क्या है? એમાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળવું? आप भी बोल देता हूँ, $1 मिलियन उसमें कुछ गुस्सा आ गया ना, तो उसका एक ये है, कैसे बात करें, रीडायरेक्ट योर अटेंशन, ऐसे बोलते हैं। रीडायरेक्ट योर अटेंशन मतलब उसमें ध्यान मत दो, दूसरे पे ध्यान, दूसरे को चीज पे ध्यान देने दो और काम Be करो, focus. बढ़िया काम करो, डोंट फोकस, हाँ, उस पे ध्यान, रीडायरेक्ट योर अटेंशन, उसको छोड़ दो। उसको छोड़ दो। वो तो पिक्चर देखो, बच्चे लोग वीडियो गेम खेलते हैं, भजन में जाओ, सत्संग में जाओ, तो इफ यू फोकस योर अटेंशन, दैट इज व्हाट क्रिएट्स, दैट्स व्हाट क्रिएट दैट एक्सपीरियंस। तो क्या है, जैसे आपने बोला ना पैर में दर्द होता है, अभी ये मौसी के पैर में दर्द, पैर में दर्द होने से दर्द नहीं हो रहा है, उसका विचार करना, उसका इंफॉर्मेशन है ना दिमाग तक पहुंच रहा है ना, उसके लिए दर्द हो रहा है। वापस समझा, देखिए डिप्रेशन या दुख हो रहा है या गुस्सा आ रहा है, ये सब बातें हैं ना, हम सोचते हैं कि हमको हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप अटेंशन देते हैं, ये आप हैं, आप जब अटेंशन देते हैं तो दुख होता है, गुस्सा आता है। एक आदमी से आपका झगड़ा हो गया, आपका इंसल्ट कर दिया, अभी वो जो इंसल्ट किया है, वो जो मेमोरी है, उसके ऊपर आप अटेंशन दे रहे, बार बार अटेंशन दे रहे। क्यों उस पे अटेंशन दे रहे हैं आप? क्यों उस पे अटेंशन दे रहे हैं? ये वो रियल लगता है। हैबिट हो गई है। नहीं, आपके पास दूसरा कुछ है नहीं ना अटेंशन देने को, हाँ, आपके पास दूसरा कुछ अटेंशन देने को है नहीं, नहीं, तो उसमें ही अटेंशन देंगे आप। करेक्ट। अटेंशन का तो कैसा है, कुछ भी नहीं है મને तो ડાયવર્ટ કરવાનું. डाइवर्ट करो, હા. डाइवर्ट करो એટલે અમારા પુષ્ટિ માર્ગમાં, આપણે પુષ્ટિ માર્ગમાં તો વલ્ભાચાર્યએ કીધું, हमारा जो वल्लभाचार्य ने उन्होंने बोला दिन में 7 बार भगवान का पूजा करो, सेवा करो, मंगला करो, उठाओ, शयन करो, वाल करो, फिर बंद करो, फिर खोल लो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर उनको कपड़ा लगाओ, तो कोई टाइम ही नहीं है फिर तुमको, पूरा दिन फिर तुमको टाइम ही नहीं है। वल्लभाचार्य सीनियर, इनके इंटेलिजेंट आदमी नहीं कोई, क्योंकि तुम इधर बैठे बैठे इसने मेरा इंसल्ट किया, इसने ऐसा बोला, इसने वैसा बोला, वो करके करके आप दुखी हो रहे। साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, आपका अटेंशन रीडायरेक्ट करो। अभी अटेंशन कहाँ रीडायरेक्ट करेंगे, तो बोला भगवान की सेवा करो, धराओ, भोग धराओ, सेवा करो, स्पेशली खाना बनाओ। आप खुद का खाना तो मैकेनिकली बनाते हैं ना, ऑटोमेटिक, हमारा
ભગવાનનું સામગ્રી અલગ, આપણા રસોડામાં નહીં, સેપરેટ. એટલે એક માણસ રિયલી જો વલ્ભાચાર્ય અમારી પુષ્ટિ માર્ગની સેવા પ્રમાણે કરે ને એની લાઈફમાં 1 સેકન્ડનો ટાઈમ જ નથી. સુબહ से शाम वो बिजी हो जाएगा. પોતાના માટે ન મળે. પોતાના માટે નહીં ને તમે કોઈ મને આમ કર્યું ને તેમ કર્યું એની ટાઈમ જ નહીં. કઈ સાંભળવાનું વિચાર નથી. કોઈ નહીં. એ વલ્ભાચાર્ય બધાને બિઝી કરાય. તમે કરો હવે अभी भी साइकेट्रिक तो क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं कि रीडायरेक्ट कर अटेंशन. हो गया ना, अभी मेमोरी को छोड़ो, उसको दूसरा करो. तो जैसे अभी पैर में दर्द हो रहा है, तो पैर में दर्द होने से दर्द नहीं हो रहा. पैर के दर्द का इंफॉर्मेशन दिमाग तक पहुंच रहा है, उसके लिए दर्द हो रहा है. पेन किलर में वही काम करता हाँ? है, पेन किलर में वही काम पेन करता है। किलर वो एग्जैक्टली पेन किलर लेते क्या करते हैं? वो कोई दर्द थोड़ी रिपेयर कर रहे हैं. भूल जाओ, भूल जाओ, खत्म. वहाँ इंफॉर्मेशन जाने नहीं देती. इंफॉर्मेशन जाने नहीं देते. गैंग्लियन ब्लॉक कर देते हाँ, वो ब्लॉक कर देते. एनेस्थीसिया में क्या करते हैं? वही करते हैं, इंफॉर्मेशन जाने नहीं देते. तो आपको क्या करना है कि हम अगर चाहते हैं, आपने ये कमिटमेंट ले लिया, एक विजन क्रिएट किया कि पीस हो जाए. आपने दुनिया में ऐसा विजन क्रिएट करो दुनिया में पीस हो जाए. आपने कमिटमेंट ले लिया. फिर अभी एक सा सिचुएशन आ गया कि अभी आपको चॉइस करनी है, शांति में जाओ या अशांति क्रिएट करो. भाई आपको मालूम है आपका पीस है, तो आप बोलेंगे मैं शांति में जाता हूँ. और आप गौतम भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपको कुछ गुस्सा आया और आपने एक्सप्रेस नहीं किया तो कुछ अंदर कुछ रहता नहीं, अंदर खाली एकदम एक केमिकल इम्बैलेंस. और आपने इसे अटेंशन डाइवर्ट कर दिया ना, केमिकल वापस बैलेंस हो जाता है. अच्छा. आपने वो चीज को बार बार क्रिएट कर रहे ना, उसने ऐसा कर दिया, फिर ऐसा कर दिया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा थोड़ी चलता है. ऐसे क्रिएट कर करके पागल हो रहे हैं. उसमें बैलेंस बहुत बढ़ जाता है एकदम. केमिकल इम्बैलेंस हो जाते हैं. आप क्या करने का, कोई भी आपको कुछ कंप्लेंट करना है, देखो मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ, कितना भी अच्छा मच्छी हो जाए, मच्छी मटन वगैरह मैं खाता नहीं. वैसे मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ और किसी का भी कुछ कंप्लेंट में सुनता ही नहीं. किसी भी कोई भी तुम्हारे घर में झगड़ा हो, मुझे मत बताओ, किसी को मत बताओ. थोड़ी टाइम में वो बताएंगे नहीं ना तो चला जाता. नहीं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ कंप्लेंट ही कंप्लेंट आती है. अरे मैंने इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, जो लोग आप समाज सेवा करने का सबसे बड़ा आपको मैं तरीका दिखाता हूँ. समाज सेवा सबसे बड़ा तरीका, कोई भी आपके पास जेन्युइन कंप्लेंट लेके आएगा, मेरी सासू है ना जल्लाद है, मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं सुनना है. अपने संबंध खराब हो जाएंगे. किसी के बारे में मेरे पास आना है तो उनकी प्रशंसा करो, मैं सुनूंगा. जैसे इंटेंस फीलिंग जो बोलते हैं, हाँ इंटेंस फीलिंग हाँ हैज दैट पावर एंड इम्पैक्ट. हाँ स्टोरी मैं कथा सुनना चाहूँगा, द्रौपदी की कथा है. हाँ जैसे अपने विदुर जी थे, हाँ बहुत बड़े भक्त की श्रेणी में आते भगवान कृष्ण के. हाँ तो उन्होंने सोचा एक बार जाते हुए सत्यभामा को मिलते जाऊँ, हाँ जो एक पटरानी से एक वाइफ थी उनकी, भगवान श्री कृष्ण की. तो वो गए उनके पास, तो उनके कंप्लेंट सुनाने लगे भगवान कृष्ण के. वो मिलते नहीं, कहाँ जाते पता नहीं होता है, उन्हें तो मेरा कुछ ख्याल ही नहीं. सत्यभामा के वक्त से ज्यादा है प्रॉब्लम. हाँ, विदुर को कंप्लेंट कृष्ण और सत्यभामा के प्रॉब्लम से कहाँ फिर क्या हुआ? मुझे देखते ही नहीं है तो हाँ। क्या करे. तो बुला जाते. एक क्षण में विदुर जी भी हाँ जो बड़े इतने बड़े भक्त थे, हाँ तो वो भी सोचने लगे और इसमें इतने इंटेंसिटी में भगवान कृष्ण में कन्वर्ट हो गए. वो हाँ कथा में कहा गई है. हाँ तो फिर भगवान कृष्ण इधर तो भी हस्तिनापुर में मीटिंग कर रहे थे, हाँ तो उन्होंने वहाँ से दूर से देखा ऐसा कंप्लेंट हो रहा है.
तो आउट ऑफ थिन एयर वो भी आ गए वहाँ पे। तो ये दोनों भी कृष्ण को देख के सत्यभामा भी बेहोश हो गई वहाँ पे। तो कहते हैं कि वो क्षण जो है उन्हें जन्म लेना पड़ा, विदुर जी को सूरदास का जन्म लेना पड़ा अगले जन्म में। कंप्लेंट की वजह से जो आप बोल रहे हैं ना, कंप्लेंट्स नेवर टू बी हर्ड, जो है वो वहाँ पे ही छोड़ना है। सही बात। और सब आप इंटेंस फीलिंग में बहुत पावरफुल है। ये मैं स्टोरी जो कथा सुना रहा हूँ, वो इंटेंस फीलिंग इतना होगा तो वो होना ही है। ऐसा करेक्ट। और आप अगर किसी को एक्सप्रेस नहीं करेंगे ना, तो बोलेंगे ना, देखिए जाने दो उसको, छोड़ो, मारो बोलिए। अभी एक हमारे पहचान में एक आदमी है, उनके जवाई का और उनका और उनकी बीवी का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, बहुत बड़ा, मतलब मारने मरने पे बात आ गई। मेरे को सुनाने लगे, मतलब मेरी एक विनती है, तो जाने दो, वो जाने दो, आप इतने बड़ा ऐसा बोलते, उसने ऐसा क्या ऐसा बोला। देखो आप मुझे सुनाएंगे ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पहली तो बात मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। और दूसरा, अभी तो तुम्हारा जवाई है, क्या करेंगे आप अभी? उसको पुलिस में डालेंगे, उसको जेल में डालेंगे, तुम्हारी बीवी को तकलीफ होने वाली, बेटी को तकलीफ होने वाली, कभी जाने दो। फिर मेरे को बोलते हैं नहीं नहीं, फिर उसने आके माफी तो मांगी थी। मैंने फिर उस पर ध्यान दो ना भाई, ऐसा किया, फिर माफी भी मांगी, अरे उस पर ध्यान बोलो। लेकिन माफ कर सकते, बोलो क्यों नहीं कर सकते? तो हमारे पास जब आपने ऐसा इंटेंशन क्रिएट किया, ईमानदारी से इंटेंशन क्रिएट किया, जब दुनिया में शांति आएगी। और आपके घर से चालू कर। ऐसा ही हुआ। एक मेरी भाभी है, हाँ। उसने वो मुझे अपना रोना बोलती थी ना, तो मैं बहुत प्रेम से सुनती थी। अभी लास्ट ये लेक्चर के बाद की उसने मेरे को स्टार्ट किया कि वो तुम आ जाओ, मेरे पेपर देखो वगैरह ऐसा। तो मैंने उसको बोला उससे क्या फायदा, जाने तुम छोड़ो दो बात। तो उसने ऐसा एक्सपेक्ट किया था, इतने साल से जो लड़की मेरी बात सुन रही थी, ऑल ऑफ अ सडन इसको क्या हुआ? शी फेल्ट वेरी बैड। और मैं कभी उनको दुख नहीं पहुंचाती थी। तो पर इतना पावर मिला मुझे। मैंने उसको बोला जाने तो अभी सब पुराने झगड़े निकाल के उसमें से कुछ होने वाला तो है नहीं। नहीं मुझे प्रूफ करना है, मुझे बताना है। मैं भी तुम्हारे पास वो पेपर आ गए हैं, जब भी कुछ निकलेगा तभी बता दो। अभी मुझे भी टाइम नहीं आने का और आप मेरे पास आएंगे, वो भी टाइम नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि वो पावर मुझ में आया, मगर मैं डर डर के उनको अच्छा न लगे इसलिए उनको एक तरह से अशांति का प्रोत्साहन कर। और एकदम पूरा बाप आपके ऊपर। और अगर आपने किसी को बोला इसको बुरा नहीं लगेगा, ये मेरी दोस्त है, ये मेरी भाभी है, इसकी सब कहानी सुनो, तो उसका सब पाप आपके ऊपर। उनको बोलो कि देखिए मैं आपकी दोस्त हूँ, आपको बहुत प्यार करता हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अब बात करेंगे ना तो कुछ ऐसी बात करें कि किसी को कुछ अच्छा क्रिएट हो, ऐसी बात करें। मैं मेरे बच्चे जाता हूँ ना घर से, ऑफिस से घर जाता हूँ, कंप्लेंट लेके खड़े हो जाते, पापा ऐसा किया, कुछ कंप्लेंट सुननी नहीं, स्कूल में ऐसा हुआ, स्कूल में ये हुआ, पता नहीं सुनना। स्कूल का इतना फी भर के मेरे को कंप्लेंट सुनाते हैं, मेरे को ये बोल स्कूल में क्या अच्छा था, टीचर ने क्या अच्छा किया, बच्चों ने क्या अच्छा किया, फायदा क्या? फिर अभी मैं थोड़ा सा, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है ना, थोड़ा मुझे कई बार बुलाते हैं, वो एग्जीबिशन में जज करके या कुछ अवार्ड सेरेमनी होती है, बोले बच्चों को अवार्ड देने आ जाइए, तो फिर मेरा फोटो लगाते स्कूल में कि चलो ये मिस्टर गुप्ता आए थे। बाकी के पेरेंट्स देखते हैं कि भाई इनको अवार्ड देने बुलाया, इनको ये किया, इनका फोटो लगाया। फिर वो पेरेंट कभी मेरे पास आते हैं, अरे आप देखिए स्कूल में बाथरूम में नल नहीं चल रहा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, प्रिंसिपल को बात मतलब मैं आपको एक कहूँ, स्कूल बहुत बढ़िया है, आपके बच्चे बहुत नसीब वाले हैं कि ये स्कूल में पढ़ रहे हैं। और जो आपको प्रॉब्लम था आप लिखिए प्रिंसिपल का, बोलो नल नहीं चल रहा। लेकिन
हाँ मैं अभी का एक अनुभव बताता हूँ कि मेरे एक दोस्त की दुकान के पास से पानी का लाइन टूटा हुआ था, रोड पे पानी आ रहा था। उसने मुझे बताया कि 4 महीने से हम लोग हर जगह पे कंप्लेंट कर चुके हैं, कॉर्पोरेटर न कोई सोशल वर्कर न कोई कुछ सुन नहीं रहा है, म्यूनसिपालिटी पे भी नहीं सुन रहे, तो क्या करें। तो मैंने तुरंत ही उसको कंप्लेंट लिख के दिया और बोला कि 4 दिन में अगर ये नहीं होता है तो मुझे बताना, फिर क्या करना वो करूँगा। वो उसने दिया कंप्लेंट और 3 दिन के अंदर हो गया। 15 दिन के बाद मैं वहां से गुजरा और मैंने पूछा पानी बंद हो गया, बोला कितने दिन में, बोले 3 दिन में वो लोग आए और रिपेयर करके दिए। बोला अच्छी बात है। तो उसने मुझे बोला कि आपकी कंप्लेंट से नहीं हुआ। मैं बोला तो वो बोला वो बहुत सोशल वर्कर आकर खड़े हो गए, जब वो म्यूनसिपालिटी वाले आए काम करने लग गए तो बहुत सोशल वर्कर कॉर्पोरेटर वगैरह सब आए, बोले हम करवा रहे। लेकिन मुझे उस समय गुस्सा नहीं आया, पहले मुझे ऐसा गुस्सा आता था कि काम मेरे कंप्लेंट के बाद हुआ, 4 महीने से वो सब लेट किया था, नहीं हो रहा था, मेरी एक कंप्लेंट बेवा हुआ। लेकिन ये सुनने के बाद ऐसे गौतम भाई ऐसे भी सोच सकते हैं, गुस्सा नहीं आया, मुझे हंसी आई कि चलो काम तो हो गया, किसी ने भी किया, काम हो गया। लेकिन आप, मैं कहूँगा एक नई तरीके से सोचेंगे। कई बार हम सोचते हैं हमने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला, कंप्लेंट किया, ऐसे भी सोचते गवर्नमेंट हमारी है, हम ही गवर्नमेंट बनाते हैं। हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट ये करके मना कर दिया, बस वही सोचा मैंने। तो ये जो हमारा सोचने का तरीका है कि कंप्लेंट करनी पड़ेगी, कुछ एग्रेशन करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। कंप्लेंट नहीं बोलो उसको, इसको रिक्वेस्ट बोलो, मैंने रिक्वेस्ट बोला, आई एम ए सिटीजन, आपको मालूम नहीं है यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये हमको चेक करके दो। तो एक, लेकिन ये गुस्सा कभी कभी आ जाता था पहले मुझे कि ऐसे जब सोशल वर्कर वहाँ खड़े हो जाते थे कि 2-4 घंटे तक काम करते थे, उनको चाय पिलाना, ये पिलाना, वो पिलाना, और मैं जाते जाते देखते भी रहता था और वो बोलते थे हमने करवाया, हालांकि वो सब मैंने किया होता है। लेकिन उसका घमंड उस समय मुझे रहता था, ये मैंने करवाया, और फिर मैं वो सोशल वर्कर के ऊपर कभी कभी गुस्सा भी करता था, कॉर्पोरेटर के ऊपर। आज वो नहीं हो रहे मुझे। कितना ब्रिलियंट कहा, देखा अभी उन्होंने कितना ब्रिलियंट कहा गौतम भाई ने कि अभी चॉइस है कि मैं गुस्सा करूं या शांति के साथ में खड़ा रहूं। हर एक मोमेंट में आपके पास चॉइस, पसंदगी कर सकते हैं हर एक मोमेंट में कि मैं शांति में खड़ा रहूं या मैं अशांति क्रिएट, मैं शांति क्रिएट करूं या अशांति। आप अगर हम ये सोचते हैं कि अगर दुनिया में हर एक आदमी कमिटमेंट ले ले मैं शांति क्रिएट करना चाहता हूं, और जो लोग शांति क्रिएट करने के लिए तैयार है उनको मैं एम्पावर करूंगा। जितने भी अशांति, कुछ लोग तो होते हैं ना जो शांति के लिए खड़े होते हैं, आप उनको जाके बोलो देख पाए मैं, तुम शांति के लिए खड़ो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा, मुझे भी इंटरेस्ट है, तुम शांति। अभी तो हम क्या करते हैं, तो झगड़ा लग रहा है, थोड़ा शांत भी हो गया, हम बोले तो ऐसा बोलते हम तो उतना मजा लेते ना, क्या अभी हो रहा है, एक्सीडेंट हुआ, लोगों को देख खड़ा रखते गाड़ी, अभी झगड़ा हो रहा है। अभी मैं, हमारे घर के नीचे एक बाइक और स्कूटर, एक बाइक और एक गाड़ी वाला पार्क करने का, स्कूटर गिर गया, इतना झगड़ा एकदम, वो गाड़ी वाला भी एकदम हो गया, स्कूटर वाला भी, और सब लोग खड़े। फिर मैं बोला भाई, स्कूटर वाले को बोला भाई क्या है, गिर गया, उठा लो। नहीं मेरा 50 रुपए का नुकसान हो गया, फिर मेरा टायर टूट गया। वो उसकी बीवी, इतनी बड़ी गाड़ी, दे दे 50 रुपए। अरे मेरी गलती नहीं है, वो तो स्कूटर गलत रखा था। अरे ठीक है, 50 रुपए दे, मैं 50 रुपए निकाल, पहले 50 चला। तो वो गाड़ी में उसकी बीवी बोलती है, अरे इसको दूसरे आदमी दे रहे पैसा, तो बोलता नहीं आप पैसा मत दो, ये लो 50 रुपया। छोड़ो मत, क्या बोला, तुम इतने बड़े आदमी हो, इतनी बड़ी गाड़ी 50 रुपए के लिए क्या करने, ठीक है, हो गया। पर हमको मजा क्या आता है, उकसाओ, हाँ नहीं बराबर है, तुम फाइट कर,
स्कूटर पे मतलब क्या है, गाड़ी वाला मतलब क्या है, दादागिरी नहीं चलेगा। स्कूटर वालों पे ये अत्याचार, गए रविवार की बात है। झंडा उठाओ। आ रहे थे ना, हाँ तो यहाँ ये कॉर्नर पे हाँ। सबवे के पास रिक्शा वाला बोला कि लेफ्ट टर्न नहीं है। हाँ। अरे मैं बोला लेफ्ट टर्न है, हम लोग बार बार आते हैं। नहीं है लेफ्ट टर्न नहीं है, गुस्से में एकदम ये करने लगा। हाँ। तो मैंने और मेरी बीवी ने बोला कि नहीं यहाँ लेफ्ट टर्न है तो ले, नहीं ले रहा था। तो ये खड़े थे आरटीओ वाले, हाँ। उनको बोला, मेरी बीवी बोलती है उसकी कंप्लेन लो, उसको ये करो। मैं बोला नहीं करना कुछ भी। नहीं एक्चुअली नहीं है वहाँ से, टर्न है भी नहीं है, टर्न है, लेते हैं। आज अभी आया मैं मतलब कहाँ पे? नहीं है पर नहीं है। या अपने सबवे के पास। नहीं नजीक का या અહીંયાથી રાઈટ લેવા नहीं नहीं अपनी बाजू આવવા માટે નથી. ત્યાંથી ઉપરથી Left હાઈવે થી આપણે આવીએ ને બોરીવલીથી નહીં મલાડ હા મલાડથી આવો તો છે પણ મલાડ બોરીવલીથી આવો બોરીવલીથી તો હા, બોરીવલીથી રાઈટ મલાડથી મલાડથી मलाड છે પણ બોરીવલીથી નથી. नहीं बोरीवली नहीं मलाड। મલાડથી है, મલાડથી कर सकते हैं। हाँ. तो मैं बोला पुलिस है देखो लोगों ने अभी समझ पकड़ कितना दो। फेर है, मैं अपनी तरफ से मैं अपना बोरीवली का सोच रही हूँ। ये समझ में भी कितने बार कंफ्यूज हो हाँ. सकता है। मैं पुलिस ने कीधु कहीं नहीं करतो भाई जवा दे ने ई खोटू बोल्यो एनो गुस्सो आयो મને। हाँ तो હવે ગુસ્સો કઈ નથી, તું જવા દે ને બોલા रिक्शा वाले ने कीधु आले तो पैसा तू जा, હવે ખોટું નહીં બોલતો। Brilliant पुलिस किया। ने મને गुस्सो आवे છે। कितना आपने बड़ा काम किया मालूम, क्योंकि एक रिक्शा वाला पे आप गुस्सा करेंगे, वो उस घर में की बीवी से झगड़ा करेगा। Really? हाँ बच्चों को मारेगा। हाँ। तो क्या करते हैं? गुस्सा निकाल आपके दो। पास पावर है, आप किसी भी गुस्सा करो, वो क्या करेगा बेचारा, वो उसकी जाके बीवी को मारेगा, उसके इन-लॉ से झगड़ा करेगा। पहले मैं उनको दंड करा रहा था, हाँ मेरे सामने इसको 200 रुपया फाइन मारो या 500 लो, हम्म। बाद में छोड़ो। अभी और मैंने बंद कर दिया। तो कितना पीस क्रिएट कर रहे हैं, कितना पीस क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारा ये विजन है, साकार ट्रस्ट में हमने ये विजन बनाया कि लेट्स अस क्रिएट वर्ल्ड पीस। आपके घर से चालू करो, आपके बिजनेस से चालू करो, आपके सोसाइटी से चालू करो। लेट्स क्रिएट पीस इन योर सोसाइटी, इन योर कम्युनिटी, इन योर बिल्डिंग, एंड एम्पावर पीपल हु आर कमिटेड टू पीस। जो लोग पीस के लिए खड़े हैं, एम्पावर्ड। सो नेक्स्ट वीक जब आएंगे आप, तो मैं सुनना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा मौका था जब आपने ये चॉइस थी कि पीस क्रिएट करो या अशांति क्रिएट करो, और आपने पीस क्रिएट की। आप मुझे बताना, ये अवेयरनेस क्रिएट करना। तो जब भी आपके दिमाग में फ्री टाइम हो जाए तो आप ये क्रिएट करना कि मेरा विजन है वर्ल्ड पीस, और मेरा विजन ये है कि आई विल एम्पावर पीपल फॉर पीस। और जो लोग ऐसे अशांति की कहानी सुनाते हैं उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना कि देखिए मेरा एक विजन है कि मैं पीस क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं ऐसी बात सुनना चाहूंगा और कहना चाहूंगा जिससे आपके दिल में पीस बढ़े। और मैं ऐसे कैसे वेजिटेरियन आदमी को कोई नॉनवेज खिलाता है, फोर्स करेगा नहीं मटन खाओ मटन खाओ, बोलेगा मैं कमिटेड हूँ। तो मेहरबानी करके अशांति की बातें, क्योंकि मेरा व्रत है, मेरा नियम है, पीस की बातें सुनना और करना। दूसरों को भी मालूम पड़ जाता है ये तो पीस वाला है। पीस वाला है, ये वेजिटेरियन है, ये नॉनवेज की बात ही नहीं सुनेगा। हाँ, मेन इसका ये है फायदा। तो मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। हाँ। मतलब मेरे डैडी के साथ मैं कभी झगड़ा कर लेता था कि हाँ। ये सोने का बिगड़ जाता था कभी काम, हाँ कभी मैंने कमिटेड कर दिया मेरे भाई के साथ कभी भी झगड़ा कर, मतलब मेरे जो मतलब जी आजू बाजू झगड़ा तो मैं बिगड़ गया तो ओके वाला, दूसरी बार मैं हाँ नहीं तो उसको वापस सुधार दूंगा। मैं झगड़ा मतलब मैं मेरी तरफ से तो नहीं होऊंगा, वेरी गुड, किसके मतलब मेरी साइड से तो मैं किसके ऊपर भी नहीं हूँ। वेरी गुड, क्या ब्रिलियंट बात की भाई। चलो लेट अस गो गेट डाउन फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन में भी हम पीस क्रिएट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा ज्यादा 15-20 मिनट जल्दी बंद करेंगे, मुझे एक सोशल इवेंट में जाना है। फिर नेक्स्ट वीक आएंगे, सुनेंगे कि हाउ यू आर जनरेटिंग पीस। ये 22 तारीख का प्रोग्राम न किए हैं। 22 का प्रोग्राम है, 22 का प्रोग्राम है 3 to 7, 3:30 to 7। एक सीनियर सिटीजन मुझे मिले थे परसों एक प्रोग्राम में, ठाकरे और बात वो आर्टिस्ट है, तो उनको भी मैंने बुलाया है। कितने बजे?
5:30 3:30 to 7, 3:30 से 7 हमने अपना साकार ट्रस्ट की तरफ 3:30 से से we have created a program called जियो शाम से सब सीनियर सिटीजन को एम्पावर करेंगे शांति से। उसका ऐसे कार्ड वगैरह कुछ है कुछ नहीं, वो तो आए नहीं थे, आप आ जाना सब लोग एवरीबॉडी मिनी हॉल में है। मिनी हॉल કઈ 4 કઈ તારીખ આ? 22 तारीख शनिवार એ ડેટ એનો હતો? जियो शाम से बहुत सारे सीनियर सिटीजन होते हैं ना, बहुत खुशी से जी रहे, बहुत खुशी से जी रहे थे वो लोग, कुछ उनको पड़ी नहीं है, बहू बेटे भाई बेटी 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 कुछ पड़ी नहीं है, वो अपना आनंद करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, मजा करते हैं। वो सब सीनियर सिटीजन को हमने बुलाया, वो गाना गाएंगे, डांस करेंगे, 20-25 सीनियर सिटीजन, तो हम लोग सुनेंगे। તમે વીર સાવરકરમાં એક વખત ગયા હતા ને? હા. બેન છે ને ત્યાં મેમ્બર છે. अच्छा હા, senior citizen ને member કરે છે. તો મને હજી શું છે, overnight નું વર્ષ ચાલે છે, તો મને કે તું member થઈ જા, એજન્ટ ભાઈ જો તને કરાવી દેતા હોય તો એ બહુ જ સારું છે, ત્યાં આવતું રોજ એમ. ત્યાં બધા રોજ આવે. ये आवश्यक लोगों को भी आना चाहिए ना, बता प्रेसिडेंट ने चेयरमैन भी आना चाहिए। Please, where it is it, brother? It is नहीं, good. नहीं, कोई- बोलिए। આપણે છે ને વિઝન વધારે એમ્પાવર્ડ પીસ વાળા હોય ને ગાર્ડન છે બડા. હા ત્યાં કોર્નરમાં થાય છે એ લોકોની બધાની મીટિંગ સિનિયર સિટીઝન વીર સાવરકર હા ગઈ સાવરકરમાં એ લોકો એક એરિયા છે, મેમ્બરનો એરિયા છે, હા ચા પાણી નાસ્તા આપે છે બધાને, હા અને ત્યાં એ લોકો ગીતો ગાય છે ડાન્સ કરે છે ડાન્સ કરે, એ લોકો આવવાના છે, ઘણા બધા આવશે। ઘણું બધું હોય છે ત્યાં એક્ટિવિટી કે લોકો પછી કેરમ રમવાનું, બધી ગેમ આ તે બધું ઘણું સરસ હોય. અને મારી બેન મને કહે કે તું member થઈ જા ને. અરે પણ ત્યાં સુધી કે 60 વર્ષ પછી કરે છે ને. હા ઠીક, તમને મને કે ઈચેભાઈને કહેજો તને કરાવી દેતા હોય ત્યાં તો. હા હા 22 તારીખે આવજો ને તમે, ત્યાં મળાવી દઈશ તમને। હા. બસ કરો ને आँख बंद कर देंगे हम।